A very good afternoon and warm wishes to all of you to present here, and respected speaker, Ms. Shabi Ahmed ma'am, Director, IIMT College of Science and Technology, Dr. Poonam Pandey ma'am, Dean, IIMT College of Science and Technology, Dr. C.S. Yadav sir, IIC President and HOD BSc Dr. Vishali ma'am, and all the coordinators and faculty representative of IIC, and all my students who present here on this virtual platform. I, Megha Rajput, Assistant Professor in BSc Department. I heartily welcome to all of you for today's session on angel investment and VC funding opportunities for early age entrepreneurs. I feel honored and privileged to welcome our guest for today's session. Before start the session, I introduce our guest. Ms. Shabi Ahmed ma'am is presently working as an assistant professor in Ravi Group of Institution, Department of Management, Agra. She is a BBA department coordinator. Ma'am, I would like you to enrich our student with your experience and knowledge on today's topic. Over to you, ma'am. Please start your session. And thank you so much for coming. Please, ma'am, start. Okay, good afternoon. Thank you, Mrs. Megha ma'am, and thank you so much IIMT College of Science and Technology inviting me. So today topic is regarding funding of early age startup. So myself, Shabi Ahmed, I am assistant professor in Ravi Group of Institution, Agra. So today I am your mentor. So today topic is angel investment funding opportunity for early stage entrepreneurs. Mission. So we are on the mission to the risking startup ecosystem, and it's very important to know the risking ecosystem. We do this now know by mentoring the startup, by providing consistency to them, by hand holding, by giving them advice, to how to move up the right up. So firstly, I am telling you why we have to need startup. इंडियन डेकोरेशन की बात करें तो हमें स्टार्टअप की जरूरत क्यों है? तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 1900 की पिक्चर है न्यूयॉर्क सिटी की. इन दिस पिक्चर ये बीच में मतलब इन दिस पिक्चर लॉट्स ऑफ तो इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं ये 1900 के पिक्चर है न्यूयॉर्क सिटी के. तो इसमें बहुत सारे हॉर्स कार्ट हैं और जिसमें बीच में एक ऑटोमोबाइल दिख रहा है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैपन वेरी फास्ट. तो ये जो पिक्चर है आपकी 1913 की है, आफ्टर 13 इयर्स न्यूयॉर्क सिटी की सेम जगह की, लेकिन आपको यहाँ पे एक भी हॉर्स कार्ट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे ऑटोमोबाइल्स है. तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना फास्ट हो रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना फास्ट हो रहा है कि 13 साल के अंदर ये सारे हॉर्स कार्ट ऑटोमोबाइल्स में बदल गए हैं. तो हम बात करते हैं यूएस में फ्रॉम 1860 टिल 2019 में जो टेक्नोलॉजी आई है उसको कितना टाइम लगा पूरी मास पॉपुलेशन को अडॉप्ट करने के लिए. तो आप ध्यान से देखिए, टीवी, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, इन सबको ऑलमोस्ट 100 इयर्स अडॉप्शन के लिए लगभग 30, 40, 50 साल लग गए थे. तो इसमें क्या है कि ये जो इतना मतलब अब क्या है इस वाली सीरीज में कि आप देख सकते हैं कि ऑल टैबलेट्स, मोबाइल, ये सारी ये जो है ना, इनको अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फास्टिंग प्रोग्रेस हो रहा है. ठीक है, तो हियर व्हाट हैपनिंग हियर. तो अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ये यूएस के बारे में, तो अब मैं बताऊंगी आपको हमारे इंडिया में क्या चल रहा है.
ये क्या है, इंडिया एज स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से देखेंगे, इंडिया की डेमोक्रेसी को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंडर 38 जो पहले दो बार्स में आपको दिख रहा है, ये जो पहले दो बार्स हैं आपको इसमें दिख रहा है कि 20% और 25%, सो दैट ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ 51 प्लस लगभग मोर देन 50 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो एज ऑफ 13। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। किसी भी कंट्री के पास ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जिनके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग हो, दैट इज बिलो एज 13। So India has huge advantage over the whole world. That is why everyone looking at us, as a startup hub, Opticure. So India adoption rate, जैसे कि आप इंडिया में जो इंटरनेट अडॉप्शन हुई है वो बहुत फास्ट हुई है। अगर आप यूपीआई की बात करें या फिर यूपीआई की बात करें या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया पर हैं प्रेटेंट, देख सकते हैं कि रूरल एरियाज तक भी ऑल टाइम्स टू जियो ऑल्सो पेनिट्रेशन हुई है। वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इंटरनेट की। सो 2014 में 30% और लोग इंटरनेट यूज करते थे, और कोविड में ये 50% तक शूट आउट हो चुका है। वी आर सिटिंग अस 50% पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट, सर्वाइवल ऑफ द यूजिंग इंटरनेट। सो नाउ सर्वाइवल ऑफ द मस्ट इवॉल्व। वी सो अगर आप इन सब चीजों को मिलाकर देखें, हम देखें क्या समझ में आता है। डिस्ट्रप्शन पहले भी था, होती थी, अब भी होती है, लेकिन जो डिस्ट्रप्शन की बेस है वो बहुत फास्ट हो गई है। पहले अगर 30-40 साल लगते थे उन सब चीजों में, अब 5 से 7 साल में वो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, होती है। आपने सुना होगा जैसे कि टिकटॉक, तो वो तो 3 सालों में ही इतना ह्यूज अडोप्शन हो गया था कि बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकीनेस। तो डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो इससे होगा क्या, जो भी ट्रेडिशनल मॉडल हैं या उनके बहुत तेजी से उधर बदलना देखना पड़ेगा। उनके पास भी कैसे ऑप्शन नहीं है, जो फिर एक स्टार्टअप को इकोसिस्टम या उससे बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा अगर वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। और जितने भी फ्यूचर में बिजनेस होंगे वो सब टेक्नोलॉजिकल बेस होंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस मॉडल ले लीजिए, अगर आपको रीरन करना है तो आप बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के सोच ही नहीं सकते हैं कोई काम करने का। जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, वो टेक्नोलॉजी हर बिजनेस के कोर में होने वाली है। दैट इज अबाउट इट। और इन सब केसेस में जो स्टार्टअप का रोल रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक टर्म यूज होती है वुको वर्ल्ड, इसको आप गूगल भी करते हैं, जो जो आने वाले टाइम में वो कितना अनसर्टेन है और वॉलेटाइल है, क्योंकि चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं। हम उसको नॉट एवरी वन कैन ऑब्जर्व दिस चेंजेस हैपनिंग विच इज हैपनिंग सो फास्ट। अब हमें ये तो समझ आ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है, अडॉप्शन इतनी फास्ट डेवलप हो रही है। ट्रेडिशनल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे तो स्टार्टअप क्या है, इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई एम शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, व्हाट इज स्टार्टअप बेसिकली। हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप में मे बी हमारे फर्दर हमारे फादर या हमारे अंकल कुछ नोन जो भी ऑलरेडी कर रहे होंगे बिजनेस, उसमें और स्टार्टअप में फर्क क्या है। तो देखिए, ऑलरेडी बिजनेस मॉड्यूल एग्जिस्टिंग है, तो उसमें इक्विटी आपने ओनर की होती है, एंड मतलब जो कंट्रोल होता है, जो पैसा लगता है वो
फाउंडर्स का लगा होता है। स्टार्टअप में मोस्टली ये देखा जाता है कि एक्सटर्नल फंडिंग इजीली मिलती है, तभी उसे स्टार्टअप कहा जाता है। रेदर देन ट्रेडिशनल बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन, स्टार्टअप यूज कहाँ, रेदर देन ट्रेडिशनल मॉडल, अगर गवर्नमेंट की बात करें, एज पर DPIIT जो रिकॉग्नाइजेशन है, स्टार्टअप यूज कहाँ जाता है, जो कि 10 साल पुरानी कोई कंपनी है वो स्टार्टअप रजिस्टर नहीं हो सकता। और दूसरा, या तो कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप होनी चाहिए, या फिर LLP होनी चाहिए। और एनुअल टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो एज पर गवर्नमेंट है। ओरिजिनल एंटिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फर्म में उसकी आपने रजिस्टर किया और उसको एक कंपनी बनाती है और आप उसको स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार्टअप रजिस्टर करवाता है अंडर DPIIT। तो ये देखा जाता है क्या बिजनेस मॉडल है या स्टार्टअप इनोवेशन है या और स्केबल है, वो क्या उसको बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा रोल आ जाता है, जो तो टेक स्टार्टअप टू न्यू हाइट्स। स्टार्टअप लाइफ साइकिल, और एक बार अपने स्टार्टअप परफॉर्म किया कर लिया या फिर नहीं भी किया, ये जो स्टार्टअप होती है मोस्टली ये होती है एक की पहली स्टेज, जो कि आइडिएशन की सबसे पहले आपको दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये एक प्रॉब्लम लग रही है, मुझे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके बिजनेस बनाना मतलब बनाया जा सकता है। तो आपके पास सिर्फ एक आइडिया आया, तो तो इसकी फर्स्ट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्टअप। और जब आइडिया आता है तो आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, या किसी कोलीग से मेरा आइडिया, और फिर धीरे धीरे आप उसको वैलिडेशन भी पकड़ते हैं। तो दैट बिकम स्टेज 2, जहां आप रिव्यूज लेते हैं अपने आइडियाज की और उसको प्रोटोटाइप में बदलते हैं। उसकी कुछ लाइक जैसे कि शार्क टैंक, आई एम श्योर काफी लोगों ने देखा होगा। उसमें जो बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं वो मोस्टली स्टेज 2 और 3 में होते हैं। जो आइडिया होता है उनके पास वैलिडेशन होती है, जैसे कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो क्या है, एक वैलिडेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है अर्ली स्टेज 3। स्टेज 3 आती है जिसमें क्या आपके रिवेन्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको दिखता है कि दिस कैन बी डेवलप इनटू बिजनेस मॉडल। और नेक्स्ट इन 4th स्टेज आती है ग्रोथ एंड एक्सेस। तो जो हमें बहुत सारे नाम सुने होंगे, जोमेटो, ओला, ओयो एंड ऑल दोज दो, वो सब ग्रोथ स्टेजेस की तरफ है। दैट बिकम स्टेज 4 ऑफ द स्टार्टअप लाइफ साइकिल। स्टार्टअप फंडिंग एज, स्टार्टअप फंडिंग स्टेजेस, सो माइट भी लोगों ने सुना होगा सीड स्टेज, ABC, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने बताया था कि 4 स्टेज होती हैं जिसमें आपको आइडिएशन होता है, वैलिडेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप उसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, प्री सीड फंडिंग बोला जाता है। पहले स्टेज होती है, इन स्टेज में स्टार्टअप अभी उसके पास सिर्फ आइडिया होता है, मार्केट में टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की। और जो लोग नॉर्मली प्री प्री सीड फंडिंग में पैसा लगाते हैं स्टार्टअप पर, वो मोस्टली आपके फंड्स और फैमिली मेंबर्स का होता है, या फिर आपका खुद का पैसा लगा होता है। कोई एक्सटर्नल फंडिंग प्री सीड पर या वेंचर्स की नहीं होती है। जो वेंचर्स VCs एंजल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, प्री सीड फंडिंग में रिस्की रिस्की बैट नहीं होती है प्री सीड में फंडिंग करना। तो इसमें कुछ वैलिडेशन की कुछ टर्म होती हैं, अप्रोक्स कितना उठाते हैं फंड रेट स्टार्टअप। प्री सीडिंग फंडिंग के बाद एक स्टेज आती है सीड फंडिंग।
तो टर्म्स कहाँ से आए बेसिकली? जब एक पौधा उगाते हैं तो उसको पानी देते हैं, नर्चर करते हैं। तो हाँ, तो सीड फंडिंग में क्या होता है, एक सीड को हमने डाला, पौधा आया, तो आप अपने जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं और उसको देखते हैं कि मार्केट में उसको एक्सेप्ट कर रही है या तो वो एक सीड फंडिंग होती है या नहीं। यहाँ पर कुछ लोग पैसा डालते हैं, अगेन इसके बाद सीरीज ए आती है। बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है ये। अगर आपने दोनों स्टेज पार कर ली, प्री सीड और सीड स्टेज, तो ये देखा जाता है जो लोग ये दो स्टेज पार कर सकते हैं तो उनके फेल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपकी 3 प्लेसेस पर है, आपकी प्रोडक्ट मार्केट फिट आप ऑलरेडी बन कर चुके हैं, और एक आपका वर्किंग मॉडल बिजनेस डेवलप हो चुका है। और तो यहाँ पर आपको फंड्स मिलने इतने मुश्किल नहीं होते, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो चुका है। इसी तरह बीसी आईपीओ की स्टेज आती है, जहां आपको अगेन फंड्स रेज करने पड़ते हैं सो दैट बिकम सीरीज बीसी और आईपीओ। आई होप सबको मालूम होगा, जिससे आपको जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नायका, सबके आईपीओ आए हैं, और कुछ अपने भी, कुछ आने भी वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई स्टार्टअप आईपीओ तक जाता है, या कोई ना कोई कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, या फिर आपने ही बिजनेस में उसको इन्वॉल्व कर लेती है। स्टार्टअप को स्टार्टअप के एग्जिट के तरीके से लेते हैं। अपने एक स्टार्टअप डेवलप किया, आईपीओ स्टेज तक ले गए, कोई ना कोई इन्वेस्टर आता है या फिर कोई कंपनी आती है, आपके स्टार्टअप को ओवरटेक कर लेती है। जिससे आपने सुना होगा 1mg को टेक ओवर किया था टाटा बिरला ग्रुप से। सो दैट वाज काइंड ऑफ ए मर्जर डेकोरेशन डेकोरम। सो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल कंपनी एक्वायर्ड बाय इंडियन स्टार्टअप। ये जो आप कंपनीज देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट लीडर्स रह चुके हैं। ये जो कंपनीज है, ये मार्केट लीडर्स रह चुकी है, जिनको बाय कर लिया है स्टार्टअप ने अपने सेक्टर की। इंडिया बाय कर लिया स्टार्टअप ने अपने सेक्टर का। आकाश इंस्टीट्यूट सुना होगा, इंडिया बायजूस, इन सब ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को एक्चुअल में स्टार्टअप ने एक्वायर्ड कर लिया है। नॉर्मली ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्टार्टअप ने कैसे एक्वायर्ड कर लिया, बट यस, एक स्टार्टअप ने कंपनी को एक्वायर बाय कर लिया, और इन्हें इतने बड़े बन जाते हैं कि बाद में जैसे कि बड़े बन जाते हैं, जैसे कि भारत पे, मामाअर्थ, इन सब ने कुछ ना कुछ एक्वायर्ड किया हुआ है। तो जैसे कि बायजूस ने एक्वायर्ड किया है आकाश को, दैट वाज ऑलमोस्ट $1 बिलियन, ऑलमोस्ट 1008 करोड़। बायजूस ने आकाश को ही टेक ओवर कर लिया था। इतना बड़ा नाम बन चुका है कि ऑल्सो बेसिकली कॉल्ड यूनिकॉर्न बट अ डेकोकॉर्न। तो इसीलिए जरूरी है इंडिया में ऐसे स्टार्टअप बने जो ट्रेडिशनल बिजनेस, उसे इतनी पावर नहीं होती जितनी स्टार्टअप में होती है। So that is also one big point, startup coming a big day, and they are already coming a big next है India's journey to 100 unicorn. तो बेसिकली $1 इज जॉब। $1 की जो जॉब कंपनी वैल्यूएशन होती है, जो उनका यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिनकी $1 बिलियन की 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है, इज डिफरेंट देन सेल। मेक श्योर जो वैल्यूएशन फिगर होती है और सेल्स फिगर होती है, उसमें काफी अंतर होता है। जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर देती है, तो तब उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो आप देखेंगे 2015 से लेकर 2020 तक
टोटल 2015 से लेके 2020 तक आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरे जैसे कि टोटल हर साल जो यूनिकॉर्न बनते हैं, इट वाज टोटल अप्रोक्स 90 टू 100 यूनिकॉर्न बने थे। 15 से लेके 2020 तक बहुत सडनली 2021 में 86 यूनिकॉर्न बन गए एक साल में। तो इससे ज्यादा, इससे ये समझ में क्या आता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है स्टार्टअप में। तो इस बी इस बीच में बहुत हैंड वर्क लगता है। तो इस बीच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, और करेंटली वी आर सिटिंग ऑन द 105 नंबर यूनिकॉर्न ऑलरेडी इंडिया में बन चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडिया बस क्रिएट हो चुका है स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही। यंगस्टर्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अंतरप्रेन्योरशिप आप लोगों के दिमाग में होगा, हम स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी बात जो होती है वो ये है कि स्टार्टअप में फाउंडर की कैपेबिलिटी, वो एक स्टार्टअप फाउंडर कितना अच्छा है, उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, और वो क्या कुछ कर सकता है। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, कितनी इंटरेस्टिंग है। इस पिक्चर में क्या है कि आपने देखा कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन उसको काम को आपने एक वीक तक किया तो वो आपको थोड़ा, मतलब उतना बड़ा नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था, लेकिन आफ्टर 1 मंथ आप उस काम को करते हंसते हंसते कर दोगे, क्योंकि वो आपको बिजी लगने लगा। तो इसमें क्या है कि इस पिक्चर में के किसी काम को हम इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि उस काम को बड़ा समझ ही नहीं रहे, तो वो थोड़े टाइम बाद आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, वो काम आपको इजी लगने लगेगा। तो एक स्टार्टअप फाउंडर में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। ओवर थिंकिंग करने से आप स्टार्टअप फाउंडर नहीं बन सकते। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, एंड एट योर यंगस्ट एज यू मस्ट लर्न टू पेस फास्ट। एक कोट है, फेल अर्ली फेल फास्ट के नाम से। तो आप जितनी जल्दी फेल हो, छोटे छोटे मिस्टेक करें, नई गलतियां करते रहिए, पुरानी गलतियां दोबारा मत कीजिए, और रिस्क लेने के लिए कैपेबल रहिए, जरूरी ठीक है। सो फर्स्ट क्या, स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये बहुत डरते हैं शुरू करने से कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो एक स्टार्टअप फाउंडर कभी भी ऐसा नहीं सोचता, बिकॉज उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर फेल हो भी गए तो क्या हो गया, फिर से नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे, बट यू हैव टू मस्ट स्टार्ट। फिर अब बात करते हैं 3 J's की। तो 3 J's बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप फाउंडर में, और ये हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज जुनून, सेकेंड वन इज जिज्ञासा, एंड थर्ड वन इज जिद्दीपन। तो जुनून इज पैशन। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, तो आप कितने पैशनेट हो, उसको लेके आप में कितनी कैपेबिलिटी है उस स्टार्टअप को स्केल तक लेकर जाने की। तो आर यू पैशनेट अबाउट योर वर्क, हम ऐसा बोल सकते हैं। देन सेकेंड इज जिज्ञासा। तो इज क्यूरियोसिटी, स्टार्टअप फाउंडर्स रुकते नहीं हैं, दे आर अचीव्ड वन थिंग एंड फाइंड अनदर थिंग। अब कहाँ जाना है, और लर्निंग एबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। वो देखते रहते हैं कि हाँ, अब हम कौन सा काम करें जिसको हम अचीव करें और इससे हम लर्न करें। फिर आता है हमारा थर्ड वन, जिद्दीपन। जब आप कोई काम करते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज भी बहुत मिलते हैं, बट इट शुड नॉट impact on you. Never stop in between, the never give up. नेगेटिव चीजें
या बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी ऑन द वे, बट आप में एक पैशन, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नहीं, मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए आई विल डू इट। मतलब ये है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो काम करना है वो करना है। कंज्यूमर टू क्रिएट अ माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। आप सोशल मीडिया पर होंगे बट ये सब है, जैसे कंज्यूमर टू क्रिएटिव माइंडसेट में क्या है कि आप सोशल मीडिया पर होंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जैसे देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वहां से, आपको मिल कुछ नहीं रहा, सिर्फ उसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिएटर माइंडसेट के साथ में, क्रिएटर माइंडसेट के साथ में आपको उसको क्रिएट करने आना चाहिए कि आप देख रहे हैं तो क्या आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्रिएटर वो होते हैं ऐसी चीजों को बनाए जिससे कि वो यूजर हुक्ड हो। नेक्स्ट आता है, आप कंटेंट देखते हैं एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट, तो आपने आपको एनालाइज कीजिए आपको कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, इससे कुछ सीख रहे हैं या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट। दिस इज नो, देयर इज नो लिमिट एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। अगर आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो मेक श्योर actual consuming education content and not entertainment content। अब हम बात करते हैं एमबीए। इट इज नॉट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज, माल बेचना आता है क्या, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपको प्रोडक्ट की वैलिडेशन भी हो गई, आपका प्रोडक्ट अच्छा भी हो गया, लेकिन आपके पास क्या सेलिंग स्किल्स हैं, नहीं है, तो फिर या तो आप सीखना जरूरी है या फिर यू मस्ट लर्न हाउ टू सेल। अगर आपको माल बेचना नहीं आता है तो एंड ऑफ द डे वो जो बिजनेस है किसी काम का नहीं है। तो बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आपके पास सेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, या फिर उनको सीखिए, या फिर अपने साथ एक को फाउंडर इन्वॉल्व कीजिए जिसको ये सब चीजें आती हों। ये भी देखा जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हमेशा 2 या 3 लोग स्टार्ट करो, क्योंकि लॉनलीनेस जर्नी को वेरी टफ बना देती है। आपके पास 2 से 3 लोग रहेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे और चीजों को आप इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। बहुत सारी लोग चीजें रहती हैं यहाँ पे। फिर देन आता है आपका एम्बेरस फेलियर। तो यहाँ पे क्या है, इजराइल में एक चीज है, वहां के एक टीचर फेलियर को एम्बेरस कहते हैं। मतलब दे सीज फेलियर इज गुड थिंग। आपको पता हो सिलिकॉन वैली यूएस में है, इधर माना जाता है अगर आपने एक बार स्टार्टअप शुरू किया और आप फेल हो गए तो आपको यहाँ पे 50% फंडिंग के चांसेस मिलते हैं, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं और स्टार्टअप को दोबारा शुरू करते हैं तो वहां पे आपको फंडिंग के 100% चांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वहां पे आपको दोबारा शुरू करने से 100% चांसेस मिल रहे हैं। क्यों, वो उन लोगों का मानना ऐसा है कि जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है और आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस फेलियर को स्टेपिंग स्टेप मानते हैं कि दोबारा वो गलती दोबारा नहीं होगी। अब आता है जैसे कि ROTI, रोटी, यू हैव टू मस्ट हर्ड रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप देखिए कि 24 घंटे में आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, या क्या हम लोग उसको रिटर्न, क्या आपको उसका रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये आपको देखना है कि आप 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज ऑलवेज एंड विल गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन वन। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका टाइम है ये बेस्ट एंटरप्रेन्योर का है। यहाँ पे आपको नए आइडियाज मिलेंगे, आज की जो जनरेशन है वो बहुत नए आइडियाज क्रिएट कर रही है। आप ये भी देखिए, अगर आपको जॉब पसंद है तो आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये आपके इन फ्यूचर का ठीक रहेगी या नहीं रहेगी।
अब आप जैसे कि ये पिक्चर्स को देख सकते हैं, 2010 की ये पिक्चर है, जिसमें एक आदमी, यहाँ पे क्या है, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे पहले हम गवर्नमेंट से पैसा लेते थे कि एक हेलीकॉप्टर चाहिए और फिर एक आदमी चाहिए जिसके पास ये वाला हुनर हो, जो फोटो शूट कर पाए इतनी मुश्किल से, और वो फोटो शूट करता था। तो यहाँ पे क्या है कि जो आप मतलब अब क्या है, अब ये बहुत कम बजट में हो जाता है। पहले इसके लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए था हम लोगों को कि ये वाला काम ऐसे होगा। अब क्या है, वो चीज खत्म ही हो गई। इन जस्ट 2 years both of the cameraman and the pilot those the jobs। तो यहाँ पे क्या है कि ये 10 सालों के अंदर इतने चेंजेस आ गए कि वो एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन में चेंज हो गया। अब कितने ड्रोन्स बन चुके हैं, अब इन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। अब वो जो ज्यादा पैसे में काम होता था वो कम में हो रहा है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि either you innovate or invest in innovation। मतलब या तो आप इनोवेट करो, अगर इनोवेट नहीं कर रहे हो तो किसी ऐसे इसमें इनोवेशन करो, तो आपके काम में इनोवेशन होनी चाहिए। एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Such a great session. And now I would like to call Dean IMT College of Science and Technology, Dr. C.S. Yadav sir, for giving the vote of thanks. Thank you, ma'am, for inviting me to give a vote of thanks for this session. A very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this IIC session to all distinguished participated here. First of all, on behalf of my college, I give a really heartfelt thanks to our resource person, Ms. Sabbe Ahmed ma'am, Assistant Professor, Ravi Group of Institution, Agra, who despite her busy schedule has found time to honor this session. Respected Speaker ma'am has enlightened us the session on IIC, angel investment, VC funding, opportunity for early stage entrepreneur, which is surely going to be very important. Thank you so much, ma'am. I would like to thank Managing Director, IMT Group of Colleges, Dr. Mayank Agrawal sir. I would like to thank Director, IMT College of Science and Technology, Dr. Poonam Pandey ma'am. I would like to thank IIC President, Dr. Vaishali ma'am, Coordinator, Megha ma'am, faculty members and staff, web team, digital team. Last but not least, all your cooperation in making this event surrounding success.